ये जो एग्रीमेंट है इसके मैं पॉइंट्स जो है वो पढ़ूंगा। दिस मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग MOU इज एंटर्ड ऑन, इसमें जो अमाउंट तो नहीं लिखा है कुछ भी ना। नंबर 1, द प्रधान ग्राम पंचायत जो भी है ब्लॉक डिस्ट्रिक्ट, ये पूरा पढ़ना है जो इसमें कॉल द फर्स्ट पार्टी विच experience shall unless the recount to the contest of meaning there at be deemed to mean and include its success and permitted assign of the first part, and the secretary village water and sanitation committee gram panchayat jo bhi hai hereafter call the second party which experience shall unless it be रिकॉग्नाइज नहीं है सर, कुछ और ही है। टू द स्पेलिंग REQUGNANT रिक्वेशन टू द कॉन्टेस्ट और मीनिंग देयर एट बी डेमेड टू मैन एंड इंक्लूड इट्स success and permitted assign of the second part, and district water sanitation mission DWSM under Jal Jeevan Mission as per name of guideline. Hereafter call the third party unless it be to the contest or meaning thereat be damaged to the main and include its success and permitted assign of the third part. फिर इसमें द जल शक्ति विभाग हिमाचल प्रदेश इज इम्प्लीमेंटिंग जल जीवन मिशन विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ providing increased access to improved potable and sanitation drinking water to the rural communities, and also the strength the digitalization of water supply and sanitation service delivery in the state. The district water sanitation mission has involved first and second party for preparation in the program as per Jal Jeevan Mission guideline. The third party in its Gram Sabha meeting has resolved to accept the key program principles and implement the program in the village. The village water sanitation committee and entered to the responsibility of implementing the program in according with the guidelines and rule formed by the district water sanitation mission. बहुत लंबा है। The district water and sanitation mission has been established by Jal Shakti Vibhag Himachal Pradesh and ensure to be the responsibility spread the implementation of the program at the district level, including provision of technical, social, financing, organization and managerial support to the first and second party in the successful implementation of the program. Now, therefore, this MOU is entered into among the authorized representative of the three parties. Objective: the MOU. ये पॉइंट है, ये पांचों पॉइंट बड़ा जो है पंचायत ने फैसिलिटेट करना है फंड्स के लिए, कैसे वो डिफरेंट तरीके से कन्वर्जन मनरेगा बीडब्ल्यूसी को उन फंड्स के लिए सर आपको पंद्रह वित्त आयोग उन चीज़ों में सारा लोकल फंड एमपी ले जो भी सारे फंड के सोर्सेज हैं सारे उसके लिए कॉपरेशन और कोऑर्डिनेशन पंचायत ने बीडब्ल्यूसी को दिया। फिल्टर गार्ड और ये वाटर ऑपरेटर पंप ऑपरेटर होंगे, इन लोगों की टाइम की पेमेंट चले जाए, ये पंचायत का काम होगा, फैसिलिटेट करना है बीडब्ल्यूसी को। टीचर मेरा बॉस नहीं रहेगा तो पेमेंट कहाँ से होगी और कैसे होगी? वो है इसमें आके वो जल शक्ति विभाग की रिस्पांसिबिलिटी, ये फैसिलिटेट ही करना है। To facilitate the second party to take over the services of the part-time workers engaged by third party. Part-time worker third party ये इसमें डिपार्टमेंट, तो डिपार्टमेंट में कोई जो आउटसोर्सिंग के और ये इसके लोग रखे हैं उनको फैसिलिटेट करना है। वाटर गार्ड्स, मल्टीपर्पज वर्कर, पैराफिटर्स, पंप ऑपरेटर, एसेट्रा फॉर मैनेजिंग। तो स्कोप इन्होंने लिखा है। अब ड्यूरेशन ऑफ दिस MOU
कितने टाइम के लिए एग्रीमेंट की बात हो रही है। द पार्टीज टू दिस MOU हैव completed the pre-planning and planning phases and implementation of the plan is underway. The agreement shall be for a period of 5 years from the date of signing of this MOU. मतलब इसका कहने का ये है कि प्लानिंग से पहले की जो तैयारियां होती है वो हमने की है, प्लानिंग भी कर दी है और इम्प्लीमेंटेशन इसकी अभी चल रही है स्कीम। तो ये MOU 5 साल के लिए अभी शुरू में बनाया है। इसके पीरियड कितना होगा? 5 साल। उसके बाद ये बढ़ भी सकता है या सरकार जो भी डिसाइड करे उसके बाद की बात करते हैं। फर्स्ट पार्टी एग्रीज टू अंडरटेक द फॉलोइंग रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। पहला है टू अडॉप्ट अ विलेज विजन, स्ट्रेटेजी एंड एक्शन प्लान फॉर डेवलपिंग द वाटर सप्लाई एंड सैनिटेशन सेक्टर इन द विलेज। पंचायत का पहला रोल क्या है? विलेज की एक विजन बनाना है। 15 साल के बाद पानी को लेकर इस पंचायत में कहाँ तक पहुँचना है, वो एक दूरदृष्टि के साथ देखना है हमने, क्या करना हमने। तो वो एक प्लान सोचना है पंचायत ने, साथ में स्ट्रेटेजी। उस तक पहुँचने के लिए जो बात हम सोचते हैं कि पानी को लेकर ये सुविधा हमारी पंचायत में होनी चाहिए, उसको लेकर कैसे उस वहाँ तक पहुँचे, क्या तौर तरीके हम अपनाएंगे, उसकी भी बात, और एक्शन प्लान उसके लिए क्या होगा, ये पंचायत तय करे। MOU आप सभी समझ गए कि क्या है? मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। तो पहली पार्ट इसमें है ग्राम पंचायत के प्रधान होंगे, आगे वही एड्रेस वगैरह, ठीक है, ओके। और सेकंड पार्ट इसमें है सेक्रेटरी विलेज वाटर सैनिटेशन, जो आपकी WVWSC कमेटी बनी हुई है, सेकंड पार्टी वो होगी। थर्ड पार्टी इसमें है डिस्ट्रिक्ट वाटर एंड सैनिटेशन मिशन। हेलो, यस, ये कौन सी आ गई थर्ड पार्टी इसमें? थर्ड पार्टी है डिपार्टमेंट होगा शायद। हाँ, डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट डिस्ट्रिक्ट वाटर एंड सैनिटेशन मिशन DWSM, कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर जल जीवन मिशन, उसी के अंडर इसको कॉन्स्टिट्यूट किया गया है, ठीक है। और ये 3 पार्टीज होगी। प्रियम्बल क्या है, प्रस्तावना क्या है, प्रस्ताव क्या है इसके बीच में? द जल शक्ति विभाग JSV हिमाचल प्रदेश इज इम्प्लीमेंटिंग जल जीवन मिशन with the objective of providing increased access to improved portable and sustainable drinking water to the rural communities and also to strengthen the decentralization of water supply and sanitation service delivery in the state। एक ही प्रस्तावना है कि जल जीवन मिशन जो है ग्रामीण स्तर पर जो है, ये क्या कहते हैं, जल की जो सुविधा है या जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसको सुचारू रूप से चलाने के लिए इंक्रीज्ड वे में प्रॉपर तरीके से जो है प्रोवाइड करने के लिए जो है क्या कहते हैं, कम्युनिटी को डिसेंट्रलाइज क्या है कि अभी एक डिपार्टमेंट के ऊपर जो है सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सब कुछ सेंट्रलाइजेशन है, उसको डिसेंट्रलाइज कर रहे हैं सो दैट पंचायत लेवल पे जो है जो ये कमिटीज फॉर्म की गई हैं, ये जिम्मेवारी लेकर के क्या है उसको बेहतरीन जो है स्ट्रेंथन कर सके, जो आपकी जल व्यवस्था है उसको सुचारू रूप से स्ट्रेंथन कर सके, और जो है वो जो गैप अभी वहाँ पर डिपार्टमेंट से लोकल कम्युनिटी के बीच का है उसको ब्रिज करने का प्रयास किया गया है इस कमेटी को फॉर्म करके। क्लियर है? The district water and sanitation mission has involved first and second party for participation in the program as per Jal Jeevan Mission guidelines। तो जो आपका वाटर सैनिटेशन है डिपार्टमेंट है, उसने जो है फर्स्ट पार्टी और सेकंड पार्टी को इसमें जो है क्या किया है, पार्टिसिपेट करवाया है, सो दैट जो है इस मिशन को सक्सेसफुल बनाया जा सके। क्लियर है? जी क्लियर है, ओके। The first party in its Gram Sabha meeting has resolved to accept the key program principles and implement the program in the village, constituted the village water sanitation committee and entrusted to it the responsibility of implementing the program in accordance with guidelines and rules framed by the district water sanitation mission। तो ग्राम सभा के अंदर जो है इसका रेजोल्यूशन पास होने के बाद जो है ये रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है आपको कैसे आप वेलकम
वाओ जिया जी, क्या बात है। नहीं, आप लोग भी इसी पे बात करने वाले हैं तो फिर बेटर है, रिपीट नहीं करेंगे। हैं? जस्ट आप लोगों को देखना अच्छा, आप देख लें। चलिए। The District Water and Sanitation Mission (DWSM) has been established by Shakti Vibhag, Himachal Pradesh, and entrusted to it the responsibility, support and implementation of the program at the district level, including provisions of technical, social, financial, organizational and managerial support to the first and second parties in successful implementation of the program. डिपार्टमेंट इस बात की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है कि जो भी टेक्निकल सपोर्ट है इस मिशन को अंजाम देने के लिए, वो जो है आपकी जो फर्स्ट एंड सेकंड पार्टी है, वो सपोर्ट जो है थर्ड पार्टी यानी जो डिपार्टमेंट है वो उसमें इंश्योर कर रहे हैं, राइट। नाउ देयरफॉर दिस MOU इज एंटर्ड इनटू अमंग द ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द थ्री पार्टीज। तीन पार्टीज हमें पहले क्लियर हो गई। ऑब्जेक्टिव क्या है? This MOU defines the roles and responsibilities of all the three parties to this MOU so as to enable them to work together as partner. तो यहाँ पर तीनों जो हैं पार्टनर्स के रूप में अपनी अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हुए जो है इस मिशन को अंजाम देंगे। स्कोप ऑफ द MOU, इसका स्कोप क्या है? All the parties to this MOU undertakes to coordinate, collaborate, support and manage the planning and implementation of the program, including operation and maintenance of the assets existing or newly created in accordance with this MOU. क्या काम है इसमें जो ये तीनों पार्टनरशिप में करेंगे, कोऑर्डिनेशन और कोलैबोरेशन में करेंगे? प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन। एक तो प्लानिंग है, उस प्लानिंग का इम्प्लीमेंटेशन है, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस, और जो एग्जिस्टिंग एसेट्स हैं, जो सोर्सेज ऑफ वाटर्स के अभी आपके पास हैं या जो नए क्रिएट किए जाएंगे, तो उन सब तीनों के बीच में जो है ये तीनों पार्टनर्स के रूप में जो है कोऑर्डिनेशन में जो है काम करें। The activities under this MOU shall be carried out in accordance with the program implementation plan as approved by the third party and also as per the operational guidelines developed and communicated to the first and second parties from time to time by the third party. थर्ड पार्टी के जरिए टाइम टू टाइम जो प्रोग्राम जो आपके पास आएंगे इम्प्लीमेंट करने के लिए, एग्जीक्यूट करने के लिए, तो वो जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके पास फर्स्ट एंड सेकंड पार्टी के पास रहेगी। द एक्टिविटीज एंड द वर्क शैल बी कैरिड आउट विद इन द जियोग्राफिकल बाउंड्रीज ऑफ द ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत की जो आपकी जियोग्राफिकल बाउंड्रीज हैं उसी के बीच में जो है ये एक्टिविटीज आपकी कैरी आउट होंगी। ड्यूरेशन ऑफ द MOU, द पार्टीज टू दिस MOU हैव कंप्लीटेड द प्री प्लानिंग एंड प्लानिंग फेज एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्लान इज अंडर वे। द एग्रीमेंट शैल बी फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years फ्रॉम द डेट ऑफ साइनिंग ऑफ दिस MOU। अब ये जो सारा प्रोग्राम है इसमें से प्लानिंग का जो काम है, इम्प्लीमेंटेशन का जो काम है, वो एक फेज में जो है ऑलरेडी मूव कर रहा है, और अब जो है इसका जो ड्यूरेशन है, कंप्लीट जो एग्जीक्यूशन का ड्यूरेशन है, वो मिनिमम 5 years का ड्यूरेशन आपके पास है। रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द फर्स्ट पार्टी दैट इज ग्राम पंचायत। अब आई बात है ग्राम पंचायत की रिस्पॉन्सिबिलिटीज और रोल जो है इस MOU के तहत जो है क्या रहने वाला है। द फर्स्ट पार्टी एग्जिस्ट टू अंडरटेक द फॉलोइंग रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज टू अडॉप्ट ए विलेज विजन। गाँव का विजन, वर्तमान में क्या पोजीशन है, भविष्य का क्या विजन है। विजन, स्ट्रेटेजी एंड एक्शन प्लान फॉर डेवलपिंग द वाटर सप्लाई एंड सैनिटेशन सेक्टर इन द विलेज। तो ये वाला जो सेक्टर है इसका जो वर्तमान के अंदर विजन है, फ्यूचर के लिए जो वर्तमान में जो पोजीशन है, फ्यूचर का जो विजन है, उसको लेकर के जो स्ट्रेटेजी है और जो एक्शन प्लान है, और उसको डेवलप करने के लिए और इस वाटर सप्लाई सैनिटेशन सेक्टर को विलेज में इंश्योर करने के लिए जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रही है कौन? पंचायत। लेकिन इसके साथ साथ आपके पास जो है कमिटी और डिपार्टमेंट का जो सपोर्ट है इसको अंजाम देने के लिए, तो ये दो ताकतें और आपके साथ हमारे लिए मेन वैसे यही है, पहला ये जो है रिस्पांसिबिलिटीज टू इंटरेस्ट
the second party the responsibility for implementing the vision, strategy, action plan for solving the issues and problems in the water supply and sanitation sector of the village. ये second part हो गया. Third, to assist the second party in preparation of rules and regulations for collection of community contribution, equitable distribution of water and penalties for the. अब देखिए इसमें बहुत इंपॉर्टेंट जो समझने वाली बात ये रहेगी, सेकेंड पार्टी को असिस्ट करना है प्रिपरेशन ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन फॉर कलेक्शन ऑफ कम्युनिटी कंट्रीब्यूशन. कम्युनिटी का जो कंट्रीब्यूशन है उसका क्या फॉर्म होगा, चाहे डिपार्टमेंट से भी या जो अभी शर्मा जी भी आपको जो है फिर से डिस्कस करेंगे. कम्युनिटी कंट्रीब्यूशन, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, नॉट डिजाइनिंग, इम्प्लीमेंटेशन है, अंडरटेकिंग, प्रोक्योरमेंट एक्टिविटीज, फंड मैनेजमेंट एंड ऑपरेटिंग मेंटेन प्रोग्राम एक्टिविटीज. तो ये जो है लोकल लेवल पे आपका जो है विलेज लेवल पे रिस्पॉन्सिबिलिटी होने वाली है. टू रिसीव वाटर इन विलेज ग्राम पंचायत स्टोरेज टैंक प्रोवाइडेड बाय द थर्ड पार्टी फॉर फर्दर डिस्ट्रीब्यूशन. थर्ड पार्टी कौन है, कौन प्रोवाइड कर रहा? डिपार्टमेंट जो कर रहा है. तो उसको आपने करना क्या है, सिर्फ उस वाटर को आपके हवाले किया गया और उसको आपने रिसीव कर दिया, आपके कंट्रोल और कस्टडी में है वो, एक तरह से उसका डिस्ट्रीब्यूशन आपने इंश्योर कर. क्लियर है? टू मेक रूल्स एंड रेगुलेशंस एंड सस्टेनेबल सिस्टम फॉर इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन. टू ध्यान दें, टू मेक रूल्स एंड रेगुलेशन and sustainable system for equitable distribution of water among all the sections of beneficiaries without any bias. In this regard, the second party may take decision to provide water meters to all the beneficiaries or at a selected point in the distribution network from own resources or arrangements of funds फ्रॉम प्रोग्राम्स लाइक महात्मा गांधी. ये तमाम जितने हमने रिसोर्सेज पहले पढ़े हैं, इन्हीं यही रिसोर्सेज हैं जहाँ से आप जो वो प्रोविजन यदि कहीं पे मीटर्स का ज़रूरत है और जो है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन को इंश्योर करने के लिए विदाउट एनी बायस. बायस मींस, बायस का मतलब है कि किसी के प्रति दबाव और प्रभाव का जो काम होता है कि वो ना करके जो है आप जो है बराबरी, जिसको कहते हैं बराबरी से जो है ना इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, तो उसके चलते आप कर पाए. So to make use of automation and inter of things tools for equitable distribution of water to all the stakeholders. यदि कुछ इस तरह के टूल जिसकी ज़रूरत है, टेक्निकल सपोर्ट के साथ इंस्टॉल करने की ज़रूरत है, तो उसको भी इंश्योर करने की ज़रूरत रहेगी. ट्रेनिंग करवा रही है. इसमें हमने क्या किया है, जो MOU हम करवा रहे हैं, जो MOU ये बता रहे हैं, हमने 80 पायलट बेसिस पे 80 पंचायतें सिलेक्ट की है ना जी. तो उसमें से शायद इन्होंने 40 अभी बुलाए, 40 नेक्स्ट बैच में बुलाएंगे, ऐसा जो था हमारा इनके साथ. तो उसमें पर पंचायत हमने टारगेट रूट था हमारा, एक प्रधान होंगे, एक पंचायत सेक्रेटरी होंगे, थर्ड एक्टिव मेंबर ऑफ BWSC के मेंबर होंगे, 3 लोग थे. तो 120 लोग के करीब शायद अभी फर्स्ट फेज में इन्होंने बुलाए. तो मेजर पर्पस हमारा था कि आपको बताएं कि जो ये MOU जो हमने करना है कि इसका मतलब पर्पस क्या है. नॉर्मली जल जीवन मिशन में आपको पता ही होगा, हर पंचायत में नल के तो लगे ही हैं, है ना. हर घर जल जो है, फर्स्ट फेज में हमने वो नल के लगवाए. सर वो भी फॉर्मेलिटी है. चलो पानी नहीं है, अभी पानी नहीं है सर इसमें. हाँ, पानी है, पंचायत को नहीं पूछा उसमें, आप पूछा उसमें, आपको पूछा. बिल्कुल समझ गया. अभी नहीं चल रहा है, अभी खत्म भी हो गया. तो उसमें सर पहले सुनो उसके बाद डिस्कस करते हैं. पहले साहब की बात सुनो. डिस्कशन पूरे आप डिस्कशन के लिए ओपन है. उसके बाद सुन लो, पहले उसके बाद बात करेंगे. टैंक पिछली गर्मी से बने, दूसरी गर्मी आने वाली है. पंचायत को नहीं इन्वॉल्व नहीं किया. अरे इसीलिए आप तो पंचायत में हैंडओवर कर रहे हैं. तो लोग अपने पास है, इनको अपनी बात रखने दो, अपने पास जो भी सवाल है, जो ओपन हाउस डिस्कशन के लिए आप मतलब उसके बाद जो मर्जी डिस्कस करें. मैं सिर्फ इसका वो बता रहा हूँ कि पर्पस क्या है ना जी, प्रारूप जो ऑब्जेक्टिव क्या है इसका. तो उसके बाद क्या है, नल के लगे कोई बात नहीं. BWSC बनाई है हमने गांव पंचायतों में, विलेज वाटर सैनिटेशन कमेटी बनी. तो इसकी नॉर्मल कंपोजिशन तो ये थी कि 50% महिला होंगी, बाकी फिर और मेंबर्स भी हैं. तो BWSC बनी, उनके माध्यम से फिर अकाउंट खोले गए
अकाउंट्स भी है पंचायत में ना, VWSC के अकाउंट्स भी है ना, वो अकाउंट्स भी हैं। फिर VWSC को बेसिक पर्पस क्या था, एक तो पानी देना है, एक क्वालिटी वाला पानी देना है। पानी भी ऐसे नहीं देना कि कोई भी पानी देना, क्वालिटी वाटर देना। उसके लिए हर पंचायत में फील्ड टेस्ट किट दी गई। लेडीज़ भी ट्रेन की हैं, लेडीज़ भी हैं, 5 लेडीज़ पर विलेज का टारगेट था हमारा, वो भी ट्रेन की हैं, FTKs दिए हैं। वो इसलिए कि आप लोगों को पता लगे आप जो पानी पी रहे हैं कि कैसा पानी है। डिपार्टमेंट तो टेस्ट करता ही है, डिपार्टमेंट की लैब्स है, वहाँ टेस्ट होते हैं, लेकिन आप लोगों में कॉन्फिडेंस, जो पब्लिक में कॉन्फिडेंस क्रिएट करने के लिए वो FTKs गांव में भी दी है, पंचायत में भी। तो इनके लिए VWSC मेंबर्स भी ट्रेन किए हैं, लेडीज़ भी ट्रेन की हैं। तो ये इसके बाद आता है कि भाई डिपार्टमेंट तो पानी दे रहा है, जो ऑब्जेक्टिव है जल जीवन मिशन का वो ये है कि एंड यूज़र जो है पंचायत लेवल पे जो है, जो पानी पी रहे हैं, जो इन विलेज जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ना, उसका रख रखाव प्लस जो पानी आपस में जो पानी बांटना है वो खुद संचालन करें उसका, ये था मेन पर्पस। उसके लिए इनिशियल स्टेज में ऐसा है, जो हमारे जहाँ पे भी लगे हुए हैं वर्कर्स, आपके पंचायतों में जो हमारे वर्कर्स हैं वही काम करेंगे, बैक एंड पे हम रहेंगे। सिर्फ आप ये देखेंगे कि मतलब आप मैनेज करेंगे उनको कि भाई जैसे कंप्लेंट्स, पहले क्या होता है, कंप्लेंट हमें आती है कि भाई पानी नहीं आ रहा, प्रधान जी करते हैं, हमें ही फ़ोन करते हैं कि जी वो जी तो सुन नहीं रहा है ना जी, पानी तो आ नहीं रहा, टैंक मेरा खाली है। तो टैंक तक पानी पहुंचा के डिपार्टमेंट देगा। उसके बाद आप मैनेज करोगे किस गांव को आपने देना है। और जो वो आदमी है, हमें क्या कंप्लेंट्स आती थी कि भाई वो आदमी तो सुनता नहीं है जो लगाया हमारा, तो उसको मैनेज आप करो। मतलब आप देखो कि आपने किस गांव को अभी देना है, किसको आप टाइम शेड्यूल फिक्स करो, आप सब कुछ करो। मतलब बैक एंड पे हम रहेंगे, सब उनकी तनख्वाह वगैरह हम दे रहे हैं, सिर्फ आपने वो इन विलेज जो है आपने देखना है कि भाई अटेंडेंस हमारे हाथ होगी। हाँ जी, अटेंडेंस आपके हाथ है ना। इससे क्या होगा कि वो आदमी आपके कंट्रोल में रहेगा, आप अपनी तरह से उसको चलाएंगे कि भैया इस गांव में पानी नहीं है, इसमें दे दे, पहले इसके घर में नहीं है, इसमें दे दे। तो वो थोड़ा आप पे कंट्रोल आएगा। तो उससे मतलब उससे क्या होगा, जो कंप्लेंट्स हमें आती है ना वो आधी हो जाएगी, मेरे ख्याल से आधी हो जाएगी कि यार रहेगी नहीं। इसमें आप पंचायत का थोड़ा सा रोल है, ये है। तो इसके लिए MOU कर रहे हैं। MOU में अभी हम गुजरात के एक टूर पे गए थे, वहाँ क्या है हम बताता हूँ। वहाँ पंचायत मैनेज कर रही है, जो भी पंचायत का पानी है ना, टैंक तक तो गवर्नमेंट देती है, जैसे उससे आगे वो कर रही है। उसमें अब जैसे यहाँ तो अभी चार्जेस नहीं है, फ्री कर दिया हुआ पानी, वहाँ भी नहीं है। वो क्या कर रहे हैं, गांव में ना अपना अकाउंट खोल के लोगों से खुद पैसे ले रहे हैं। वो ऐसा नहीं है टैरिफ फिक्स की हुई, छोटा मोटा जो होता है तो वो जो चालू की सिर्फ मतलब वो फीता कटा है, उसके बाद पानी जो उसमें आज तक नहीं आया। और इतनी बड़ी, और वहाँ उस स्कीम में जो है आई थिंक रोडू और ऊपर के इलाके में पहली ऐसी वो है जो मतलब फोन से होती है, क्या बोलते हैं ऑपरेट, ठीक है, क्या बोलते हैं उसको, मैं नाम भूल गया उसका, जो ऑपरेट होती है। लेकिन सर उसमें पानी नहीं आया। ठीक मतलब है वो सबसे बड़ी, मतलब गाँव की सबसे बड़ी स्कीम है, लेकिन पानी नहीं आया सर। कितना टाइम हो गया सर उसको तब तो काफ़ी टाइम हो गया, अब तो 4 मतलब सिर्फ उसका मतलब वहाँ पे वो लगाना था शिलान्यास वो किया। उस दिन पानी ऐसे छोड़ा टैंक टू टैंक, उसके बाद सर लेकिन पाइपें बिछी है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ। चलो उसमें कोई टेक्निकल अब क्या होगा, ये टेक्निकल सर कुछ नहीं है। अब सोचो आप अगर 4-5 करोड़ का प्रोजेक्ट है, वो चलेगा। अगर वो शुरू में ही उसमें टेक्निकल एरर आ गए तो ये तो फेलियर है ना सिस्टम। हो जाएगा, अब पता नहीं। अब पानी सर वहाँ बहुत है, पानी बहुत है। ठेकेदार क्या करते हैं, सड़कों की नालियों में लेकिन वो जो है प्रॉपर उसमें नहीं आ, रूटीन में नहीं, उसमें पानी नहीं आ रहा। सबसे मतलब एक सबसे बड़ी दिक्कत है हमारे भी। अब सोचो आप जहाँ 4-5 करोड़ रुपए आप खर्च कर रहे हो, अगर उसका फायदा ही ना मिले। नहीं ऐसा है, मतलब चलो लेट होगा, इस पर सर एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन ये भी है, ठीक है, जब हम बड़ी स्कीम बनाते हैं, 5 लाख की अगर स्कीम हमारे गांव में बन रही है, NOC आप लेते हैं, NOC पंचायत से मिलती है, और मैं समझता हूँ कि वे आने वाले समय में जैसे 5 लाख की स्कीम कंप्लीट होती है, उसमें देख रेख हमारी होनी चाहिए, पंचायत NOC उसके बाद मिलनी चाहिए कि भाई क्या ठेकेदार ने
क्वालिटी वाइज वर्क ठीक किया है या नहीं, हमने उसमें प्रधान को इन्वॉल्व किया जाए ताकि ठेकेदार की पेमेंट उस हिसाब से इसमें वैसे VWSC ना इन्वॉल्व है जी। जो आपके गांव में स्कीम बन रही है ना जी, नॉर्मली तो ये था कि प्लान भी VWSC और आप लोग देंगे, उसके बाद स्कीम बनेगी। जी जी ऐसा है वैसे नॉर्मली जो आप आगे से करें। मैं इसकी सर VWSC की सच्चाई बताऊं, हाँ जी, कमेटियां बना दी थी, फ्रेम कर दी थी, लेकिन उसका महत्व हमें नहीं पता था। आज यहाँ पे जब हम आए हैं पायलट प्रोजेक्ट बेसिस पे हमें तो मुझे लगता है कि नई कमेटियों का गठन इसके बाद हमें करना पड़ेगा। बिल्कुल करें, बिल्कुल करें। अगर आपको लगता है कि इनएक्टिव मेंबर है या किसी VWSC पहले स्टार्टिंग में जैसे बनी थी कि किसी को पता ही नहीं है कि और मैं प्रधान से रिक्वेस्ट करूंगा कि उसका प्रधान कोई ना बने, मेंबर जरूर बने, क्योंकि प्रधान तो 2-3 साल बाद चले जाएंगे। एक्टिव उसमें एक्टिव मेंबर्स होंगे, मतलब लेडीज लें, एक्टिव मेंबर्स लें जो मतलब कुछ करे। अगर किसी को पता ही नहीं है कि मेंबर कौन है, वो बोला अच्छा जी मैं भी मेंबर हूँ, कई जगह हुआ है हमारे साथ से हुआ है, ऐसा हुआ है, ऐसा नहीं है सर। उसमें और एक चीज बता रहा था मैं, और उसमें जो हमने NOC अभी डिपार्टमेंट को नहीं दी है। अच्छा। हालांकि डिपार्टमेंट जो है हमें फोन करता है तो बाबू की भाई दे दो। अभी तक हमने, क्योंकि हमारे को पता अगर हमने NOC दे दी उसके बाद तो हमारा कंट्रोल ही खत्म हो जाएगा। कंट्रोल ऐसा नहीं है कि कंट्रोल आपका खत्म है, कंट्रोल तो हम इन विलेज पे जा रहे हैं। कंट्रोल वैसे पंचायत का ही रहता है, मतलब आप ही है, आप मैनेज करें। नहीं सर, उनकी आपके डिपार्टमेंट की सिरदर्दी कब तक है जब तक उनको NOC नहीं दी। अगर उनको NOC दे दी तो उस मतलब NOC तो तब देगा आदमी जब सेटिस्फाई होगा। एंड में देखो, एंड में पानी तो आपको पंचायत को ही देना है, मतलब आपकी नहीं। नहीं, प्रधान जी की बात का कहना ये है 5 करोड़ की मानो स्कीम बनी। हाँ जी, हाँ जी। उस स्कीम का फायदा क्या है? मान उद्घाटन हो गया, अब लोगों को उसमें पानी नहीं आ रहा है। अब तो हरासमेंट तो पंचायत है और ठेकेदार ने अपने पैसे लेके वो भाग गया, वो तो मजे में। और उसके बाद इतना पैसा खर्च करने के बाद अगर वो जनता को लिए फायदा नहीं हुआ, सोचो आप स्कीम बढ़ाने का फायदा क्या? है उसकी जवाबदेही किसकी होगी? या तो डिपार्टमेंट करे, लाइबिलिटी तो पड़नी चाहिए, किसी के ऊपर फिक्स लाइबिलिटी पड़े। हालांकि हम वो पड़ेगी अगर स्कीम नहीं चलती है तो लाइबिलिटी। सर लोगों के इतने फोन आते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है स्कीमें चलेगी, मतलब और कुछ हो बट मतलब इतने फोन आते हैं क्योंकि वो दरअसल जहाँ वो लिफ्ट का पानी गया ना सर, वो इलाका जो है अभी तक बाकी पानी नीचे को है, लेकिन जहाँ जरूरत थी वहाँ के लिए वो लिफ्ट का हुआ, लिफ्ट बनी। लेकिन दुख की बात है कि उसमें किसी भी नलके में पानी नहीं आया सर। मैं खुद जो है मैं स्प्रे करनी थी सेब के पेड़ में, तो मैं जो स्कीम का नाम क्या है? स्कीम का सर बमनोली खट से उठाऊ पे जल योजना बमनोली से शाड़ी था सर। ठेकेदार जब ठेका लेते तो उन पे किसी की ये नहीं होती ऑटोमेशन वाली पहली में वो लगी हुई कंट्रोल डिपार्टमेंट का पूरा तो सर जब हम फोन करते तो बोलते हैं कि ये तो फलाने ठेकेदार ने किया, तो उस ठेकेदार को कॉल करते हो बोलते मैंने तो ये फलाने वही चीज तो आप लोगों ने देखनी है एक्चुअली। पता क्या, जब ठेकेदार काम करता है ऑटोमेशन पे 18 लाख तो आप लोग ऑटोमेशन पे खर्च हुआ उसमें 18 से 20 लाख फोन से। लेकिन मतलब मजा आया हमारे को कि फोन से चल रही, हमारे को दिखाया कि भी फोन से चल रही, बस वो 2 दिन फोन से चल रही और उसके बाद आज तक वो फोन जो है बोलते हमारे पास ना तो काम करने वाले बंदे नहीं है, या कभी कोई ना कोई बहाना होगा। इन विलेज में जो काम होगा ना वो पंचायत के उससे होगा, मतलब कंसेंट से होगा, पंचायत करवाएगी, बल्कि क्वालिटी भी वो चेक करेगी पंचायत की, भाई ये काम हो रहा है कि नहीं हो रहा। अगर नहीं हो रहा ठीक सर पता क्या कर सकते हैं रिटर्न में डिपार्टमेंट को कि भैया ये काम रोक दो, ये ठीक नहीं हो रहा है। या और सर इसमें एक क्लॉज पे बात करना चाहूंगा सर मैं इस पे ना, एक सेकंड, इसमें पता क्या है गलती किसकी है? पंचायत की है। आपका काम कंप्लीट हो गया और बोलने का हाँ, चित्ते नहीं है। थोड़ा वही चीज में स्टार्ट होता है एक्चुअली जब काम को रोका जाए, किसमें मटेरियल सही ढंग से लग रहा है। पिछले वाले प्रधानों के टाइम में हुआ है नहीं, अब ये पानी और सप्लाई बस पब्लिक तो आप ही है ना, वो सफर तो गांव काम को पहले तभी रोकना कमेटी पड़ेगा। बनाई है, VWSC तभी बनाई है। सप्लाई हुई ना पानी की, तभी तो बाहर निकला पानी, तभी तो पता लगा कि भाई ये जोड़ी ही नहीं है ढंग से। जब गांव हमने क्या किया ना, जल जीवन मिशन में जो काम हो रहा है ना उसके लिए एक थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन TPI कर रहे हैं। उसके लिए क्या है, हमारा विभाग नहीं है, तीसरी पार्टी आएगी और इंस्पेक्ट करेगी काम को, वो भी है। और गांव वालों को तो हमने बोला ही है कि जो ये कमेटी बनी कि सर जो कमेटी बनती है ना सर, इसमें कम्युनिटी के जो लोग रहते हैं वो एक्टिव नहीं रहते। वो एक्टिव देखो,
एक्टिव हम बना दिए, थोड़ा हमने बीआरसी बनी की ड्यूटी गलत है, लगाते हैं कमेटी थोड़ी, गलत कि है। भैया आप इनकी मीटिंग कर लो, दूसरे यहाँ से लिखते रहते हैं। सिर्फ हमारे थोड़ा आपने बनाई है क्या स्कूल है आप मैक्सिमम टारगेट हम यही करते हैं। नहीं है मैक्सिमम ना टारगेट हम जब यही करते हैं। एक्टिव मेंबर को पहले लाना कन्विंस करना जो हमारे ऊपर पहले ज़्यादा इन दो कमेटी वो आप पे डिपेंड करता है। कन्विंस करना पड़ेगा सर इस वीडियो आप पे डिपेंड करता है, भैया आप बनो, आपके इसमें ये दायित्व रहेगा। हम तो बोल ही सकते हैं आप बनाओ अपने गाँव में। सर आप आगे बात रखेंगे ना, गवर्नमेंट ऐसे कोई ये निकालेगा नहीं हमने निकाला हुआ है गाइडलाइंस तो आंगनबाड़ी हाँ जी उसमें गाइडलाइंस में सब है। स्कूल भी हो सर इसमें ना, जैसे लोगों बिल्कुल एक क्लॉज सर इसमें 7 है, ये रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ थर्ड पार्टी डिस्ट्रिक्ट वाटर सैनिटेशन मिशन। इसमें क्या है जो आप बता रहे हैं ना कि भाई हम जो है सैलरी सेकंड पार्टी को देंगे। नहीं सैलरी हम ही देंगे। नहीं आप देंगे आप जो हमें वो दोगे उनकी जो इसमें ऐसा ना हो कि जो सेकंड पार्टी में जो वॉलंटियर जो भी है जो भी होगी कहीं वो ही ऐसा ना करे कि किसी के मान लो कोई काम भी कर रहा है किसी के साथ मतलब थोड़ा इस पे ज्यादा मतलब ये लगा मेरे को इसमें क्लॉज, बाकी लगभग ठीक है ये जो एमओयू है, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें पारदर्शिता होना बड़ा जरूरी है। क्योंकि ऐसा ना सेकंड पार्टी को मान लो आप पेमेंट दे रहे हैं कि भैया आप इसको हो सकता है कि वही जो है अब वो तो कोई उनके ऊपर तो किसी का चेक नहीं है ना। नहीं वही तो हम कह रहे हैं जो सर जो गांव ये में फिर आपस में कहीं ना कहीं नहीं मान लो जो गांव में लगे आपस में ना भिड़ जाए इस मैटर में। ये टास्क वर्क सर पता क्या ना जो ये एमओयू जो बन रहा है पंचायत और डिपार्टमेंट के बीच जो बन रहा है ना, मेरा इसके बारे में बाकी तो ये चलती रहेगी, कई बातें चलती रहेगी, ये सिर्फ ऐसे मन भरने की बातें है। ठीक है, पंचायत में आप लोग काम करते हैं, मैं पंचायत सेक्रेटरी में ऐसे ठीक है, पंचायत के काम हो गए, हर तीसरा आदमी रग मारेगा। ठीक है, आईपीएच और पीडब्ल्यू को बड़े लोग है, बड़े डिपार्टमेंट है, ठेकेदारों को ना बोला जाता है, कोई नहीं बोला, कौन बोल पाएगा, कोई नहीं बोल पाएगा। ठीक है, ये चीजें जो साथ कौन कमेटी बन गई बड़ी भारी, वो बड़ी भारी डीसी लगे कि ये काम नहीं हो वही है ना फिर, और दूसरा उनको जो अधिकार लोग होते हैं ठेकेदार को नहीं बोला, वही तो मैं बोल रहा हूँ, ये अधिकार दे दे उनको कि सैलरी आप देंगे, उसमें कहीं ना कहीं काम ठीक हो रहा है कि गलत हो रहा है। ठीक है ना, ये बातें छोड़ दो, नॉर्मली तो डिपार्टमेंट ही देखें। मेरा डिस्कशन ये करना जो एमओयू जो हमारे बीच जो आप बोले कि एमओयू होना ये होना वो होना, इसमें पंचायत और हमारा आपस में क्या ये रोल रहेगा कि क्या पंचायत के लिए कोई किसी स्कीम पार्टी को स्कीम बनाने के लिए कोई फंड आएगा, क्या आएगा, इसको क्लियर करो। बाकी जो ऐसे लगे देखो स्कीम हमने बना दी है ना जी, स्कीम चली हुई, पानी आ रहा है, सिर्फ आप इन विलेज में डिस्ट्रीब्यूशन वाला पार्ट देखिए, जो हमारे लोग लगे हैं उनको मैनेज करना है। अभी तो फिलहाल इतना ही है। पंचायत के लिए एक बगार वो तो सर वाटर कार्ड भी नहीं, लगेगा, वो तो सर वाटर कार्ड है ना, वाटर कार्ड आईपीएच डिपार्टमेंट की नौकरी करेंगे, भाई ये पानी ठीक जा रहा वो जा रहा साढ़े जो फंक्शनरी थी वो सेम थी। हमारा मतलब ये सर फंडिंग होगी, फंड कहाँ से आएगा, वही मैं कह रहा हूँ, मैंने सर फंड का पार्ट फंड का पार्ट जो तो लगे हुए हैं उनको तो हम तनख्वाह नहीं हम सारे स्कीम के फंड की बात हो रही है, फंडिंग हम कर रहे हैं। कुछ नहीं, मैं पता क्या है किसको करें सर आप पंचायत को, नहीं इसमें पता क्या है, ये बना के दे रहे हैं मतलब जो आगे का डिस्ट्रीब्यूशन वाला पार्ट है वो जो है गांव के अंदर पानी बांटने वाला पार्ट है और आपस में जो पार्ट है वो काट के दे। इसमें पता सर क्या है, चलो ठीक है आपने पंचायत को बोल दिया कि आप देख करोगे, आप पूरा वो करोगे, लोग समझेंगे कि ये स्कीम जो है पंचायत लाई है। कल दिन आपका जैसे अभी बरसात है, पाइप टूट गई और डिपार्टमेंट वालों को हम रेजुलेशन देती कि पाइप वो तो पंचायत वो की आपस में अरे पंचायत के हमारे को डिस्टर्ब करने के लिए झगड़ा का एक और लिया, समझ गए ये बात आपको शिकायत आ रही है डिपार्टमेंट बंद थोड़ी हो रहा है, डिपार्टमेंट का ताला थोड़ी लगा है। जल्दी करता है जब उसको पता है कि तो पंचायत वालों को वो करना। आपको सिर्फ हमने अभी डिस्ट्रीब्यूशन सर एक काम करो, डिस्ट्रीब्यूशन है हमें ना एक पहले ना कहीं विजिट करवा दो बाहर, वैसे तो कैसे काम होना है, मजाक नहीं कर रहा, रियलिटी बता रहा हूँ आपको, फील्ड में जो पायलट प्रोजेक्ट इसमें हमने एक प्रोविजन और किया है, प्रैक्टिकल हम देखेंगे, हम समझेंगे, बहुत ज्यादा इजी होगा उसमें हम कर रहे हैं किसी पंचायत मतलब सिलेक्ट करेंगे, बाहर का टूर भी लगवाएंगे। इसमें पता क्या है ना, इसमें ज्यादा समझने की बात क्या है, इन लोगों ने आईपीएच डिपार्टमेंट ने ऐसा तैयार करके दे दिया, ठीक है ओके, कहने का मतलब ये है कि जो पानी है जो भी है उसको आगे डिस्ट्रीब्यूट पंचायत में करना, वो सही हालत में चले, कल उस दिन उसमें कुछ सुनो पहले कई उसमें कहीं पाइप टूटती है कोई रिपेयर के लिए कि वो पंचायत उसको देख रेख करे,
मतलब एक एक्स्ट्रा बिगाड़ रहे वो मतलब पंचायत चलो वो आपके लेने पे पंचायत अपने काम करे कि ये पहले काम करते रहे 36 डिपार्टमेंट में हम तो अब फंड्स की बात कर रहे हैं, तो पसंद ही नहीं आ रहे हैं फंड्स की बात कर रहे हैं। नहीं है तो बेला काम है नहीं जो तो स्टार्टिंग है हमारे अपने सरकार से पागल बैठा है यहाँ बस मैं आपको अपने वीडियो को डेली बोलता हूँ यार आप दूसरे डिपार्टमेंट के काम क्यों देते हैं आप उनकी करवाई सुन दवाई नहीं है वो बेला भी आ रहे हैं हमारी लकी डाल के हम लड़ाई में रखना है वो डाल के अरे वही तो लाइन में हम हमारे बड़े भाई को ही हो रहा हम नहीं स्कीम बिल्कुल मेरे पार पे एक मिनट के लिए एक हम आए यार एक करके बोलो साहब बोलते हैं कि यार आप क्यों जा रहे हो हमारा भी एमओयू हो रहा है हम तो बड़ी स्कीमें बना रहे हैं मुझे लगा बड़ी आओ भाजी मानने जी वो सर हम तो बड़ी बड़ी योजनाएं बनाएंगे अब योजना आप बना सकते हैं उसके लिए पता क्या है उसके लिए आपको प्लान देना पड़ेगा कोई पता नहीं हिलता है अगर प्रधान तेज हो ना पता नहीं हिलता है जैसे ये लोग बोल रहे ना कि स्कीमें नहीं बन रही ठीक है काम को पहले रुको कौन आईपीएच डिपार्टमेंट कौन बैठा कोई नहीं है ऐसा ना ऑफिसर लगे आप एक सिंह है कोई भी बड़े बड़े ऑफिसर है अगर सब लोगों की जेब से टैक्स जा रहा ना तब तनख्वाह मिल रही है जो भी काम वो ठेकेदार के बाप का नहीं किसी का पैसा काम को पहले रुको ठीक है वीडियो बनाओ वहाँ पत्रकार पहुंचाओ ठीक है ना कोई नहीं बैठा अगर आप लोग जागरूक है आप लोग ही देखेंगे बिल्कुल है ना जी पर काम कंप्लीट होने के बाद में बोलना वो तो नहीं है ना पहले रोको काम करो ये गलत होता चलो है वो तो ठीक है पर बाद में जो हमारे हैंडओवर होगा ये हैंडओवर ये पहला काम है सर ये काम नहीं है ठीक बड़ा ये नहीं है काम क्यों वैसे भी पंचायत को बच्ची का हराम है पाइप टूट जाएगी दूसरे दिन फोन आई पाइप लो प्रधान जी पाइप टूट गई पर सेक्रेटरी प्रधान हो जाने उसी में उधर से लगा छत्ती पीछे और कोई आदमी तो 1100 देखो इनिशियल स्टेज पे तो आप पाइप से वो डिपार्टमेंट ही दे रहा है ऐसा कुछ नहीं है कि आप पहले भी करता है इस तरह की सिरदर्दी जो है हमारी वो शिकायत थोड़ा वो ग्रीवेंस लेवल जो है ना वो अपनी कंप्लेंट है सर एक कुल मिलाकर ऐसा लग रहा है कि जो डिपार्टमेंट जो पास नॉर्मली प्रधान के पास नॉर्मली प्रधान के पास ही आते हैं प्रधान क्या करते हैं एक्शन को फोन करेगा जी तो फोन बंद करके बैठे कि वो कीमत तो उठा नहीं रहा जो कीमत है ना असली तो वही है इसलिए सबसे बेहतर है डिपार्टमेंट चार वो लगे गार्ड वो क्या लगे आपके वाटर गार्ड लगे 4 या 8 लोगों को सही सर्विस दो पंचायत कहाँ से बिल करे कहाँ से करे लेबर प्रोवाइड कहाँ से करे 36 अभी तो हम नहीं करे हुए हैं अभी तो जो हमारे पंचायत में तो अपने सिरदर्द ये पागल अगर ये मॉडल अगर आगे चलता है क्या पता किसी पंचायत में चले भी किसी पंचायत में चले भी सब में नहीं सक्सेसफुल उसमें क्या है जैसे कलेक्शन करेगी पंचायत है ना कलेक्शन करके ये अपने आप खुद भी रख सकते हैं लोग एक्स्ट्रा नहीं ठीक है वो भी ठीक है मतलब अगर कहीं कोई पंचायत ऐसी एक्टिव हो और ऐसा करे ना उसमें जो वहाँ के मॉडल्स हैं चलो यहाँ नहीं कह रहा मैं वहाँ तो उन्होंने अपने बंदे एक्स्ट्रा भी रख दिए कि भैया पार्ट टाइम रखे हुए हैं कि 2-2.5 हज़ार दे दिया कि ये चाबी थे बोल दे भाई ये चाबी अच्छा पंचायत में ना अपने हाँ पंचायत उनके पास सोर्सेज सोर्स पता है कहाँ से आता है 15 फाइनेंस जो है ना जो आपने सुने आप 50% पैसा जो है उसमें पानी का आप अपना प्रपोजल दे सकते हैं आप अपना प्रपोजल दे सकते हैं अब पैसा कितना आएगा वो तो आप अभी पता क्या होने वाला है क्या हो रहा है सर अभी एक सर्वे हुआ ठीक है उसमें 9 थीमें उसमें बनी उस पर कार्य होना है जितनी भी जो आईपीएच की स्कीम है चाहे वो पीडब्ल्यूडी की है चाहे ऑल द डिपार्टमेंट ठीक है वो सबका हमारा जो शेल्फ है वो एक बनेगा उसमें महात्मा गांधी जो योजना है फाइनेंस है एसडीएम है जितने हमारे एमपी लेड है एमएलए है बीएसपी है जितनी भी ये सारी जो चीजें ये कनेक्ट होगी हमारा सबका जो शेल्फ है वो एक तरह का होगा तभी वो मान्य होगा जो भी आपकी जो चाहे वो सिंचाई की है चाहे वो पीने की है जो भी सारा प्लान हमने करना है आपके डिपार्टमेंट के भी होंगे सब डिपार्टमेंट का जो बनेगा मतलब सबका जो मिलके चलना है ये वो मतलब आप प्लान करेंगे ना आपको क्या चाहिए पानी में क्या चाहिए और स्वच्छ भारत में क्या चाहिए वो प्लान करके वो शेल्फ जाएगी
ये है, थोड़ा पंचायत को एक्टिव होना पड़ता है। पंचायत एक्टिव है सर, थोड़े बहुत फंड मिल जाते हैं, ऐसा नहीं है। और पंचायत के काम अपने छत्ती है जो ऊपर से IPH दे रहा है, अब अब जो पंचायत के सेक्रेटरी साहब कह रहे हैं तरफ अरे एक चीज है सेक्रेटरी साहब बात कीजिए यहाँ पर। अब पंचायत सेक्रेटरी साहब कह रहे हैं कि फंड है जी, अब इसमें पता क्या है? ऐसा कुछ भी नहीं। एक चीज है प्रधान जी सुनिए एक्शन साहब, हाँ जी, हाँ जी। इसमें सर ऐसा है विषय थोड़ा भटक गया बहुत ज्यादा। हाँ। इसमें कुछ नहीं है, शॉर्टकट बात है। हाँ। मेरी पंचायत में एक स्कीम आप दे रहे हैं जो कल हमारा एग्रीमेंट बन रहा है। हाँ, हाँ। एक स्कीम आपको दे दी, छोटी सी दी ना, पहले तो इसका हम रिहर्सल करने की भाई छोटी स्कीम आपको दे दी, स्कीम दे रहे हैं पायलट, नलका दे दिया, सब कुछ दे दिया, कर्मचारी इनका है, हमारे पास कुछ नहीं है। हमारी जो कमेटी और देख रेख हमारी रहेगी उसमें यह है कि भाई जो कर्मचारी है, जो आप कह रहे हैं कि इधर से आवाज आ रही है कि भाई हमारी सुनता नहीं हो जाए, इससे ज्यादा बनता है, वो हमारे पास उन्होंने एक पावर दे दी है। जब तक हम उसको वेरीफाइड अटेंडेंस उसकी नहीं करते तब तक उसको सैलरी नहीं मिलेगी, सैलरी नहीं मिलेगी, उसको हमारे अनुसार काम करना पड़ेगा, पंचायत के अनुसार उसको कर्मचारी को काम करना मिलेगा। मेरे को भी कन्फ्यूजन का है, कन्फ्यूजन का है सर। नहीं उसमें बोलो क्या, वो तो ठीक है सैलरी दे रहे हैं आप, जब आपने साइन कर दिया ना, कहीं सेकंड पार्टी में जो लोग हैं ना, अगर कहीं वही जो है, अब किसी की जॉब है, किसी को तनख्वाह देनी है, कहीं वही ना उसमें ये करे सेकंड पार्टी में हमारे हाथ में अभी जो बनानी है हमने जाके फ्रेश, वो तो ठीक है ना, किसी का दिमाग भी फिर जाए, कोई ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। अब हम प्रधान बने, हमारा दिमाग कैसे हम तो किस्मत वाले हैं कि पूरे हिमाचल प्रदेश में जो 40 पंचायतें पायलट प्रोजेक्ट में है। विजिलेंस कमेटी वो नहीं करते आपके यहाँ विजिलेंस कमेटी? ऐसा है ना सर, मॉडल बनता है कहाँ केरला का, आपके हिमाचल में क्या सर कमियाँ जब तक हैं? स्टार्टअप नहीं करेंगे ना, मैं वाटरशेड में बैंगलोर जाने का मौका देख के वो सीखा। पता ही नहीं है। अब MOU हमने आपको पढ़ा दिया, नहीं ठीक है, करेक्ट हमने बता दिया, है ना जी। अब ये आप पे डिपेंड है, आपने क्या करना है, हाँ आप पे डिपेंड है, आप एनालाइज करें, मतलब 1-2 सेशंस और ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन करें, अभी होने हैं सर, क्या क्रैक्स निकलता है आप देखें, मतलब इस पे ये कोई नहीं है कि भाई कि मतलब बाध्य कोई नहीं, हमारा तो जस्ट ये है कि हमें थोड़ा जागरूकता टाइप जो होता है कि थोड़े जागरूक करने की स्टार्टअप है सर। हाँ, अच्छा स्टार्टअप इसमें कोई दिक्कत सही है सर, बढ़िया। अब कुछ कमियां तो कमियां तो हर जगह है, कमियां कहाँ नहीं है, कमियां बस आप एक बार प्रैक्टिकली विजिट जरूर, प्रैक्टिकल विजिट्स का करा एक विजिट के लिए हम इंटर स्टेट विजिट कराएंगे, पंचायत सेक्रेटरी से बात प्रैक्टिकल सीखने के लिए कुछ और भी उनको कराएंगे, पंचायत सेक्रेटरी पहला से बात टारगेट कर ग्रुप जैसे वो लेंगे जो MOU बहुत बढ़िया है। मतलब पहले सच MOU बोल रहा लेंगे ना, हूँ, हमारी इन्वॉल्वमेंट मतलब उसमें हमारे तो हम भेजेंगे, गुजरात ही भेजेंगे, वो मॉडल दिखाएंगे आपको, उससे बड़ा फर्क पड़ता है, मैंने महसूस किया है। बिल्कुल हम भी गए, हमने भी देखा, तो हमें भी लगा तभी आपने आके सरकार को बताया, प्रेजेंट किया और सरकार मान गई। ऐसा है। ठीक है जी, धन्यवाद, थैंक यू सर। So friends, we had discussion on the MOUs. हमने 2 ग्रुप्स में ऊपर चर्चा की, तीसरे में यहाँ पे कृष्णा साहब आए हैं जो जल जीवन मिशन में अभी एक मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी एग्जीक्यूशन इनके पास है, तो इनका स्वयं यहाँ पे आना और आपसे इंटरेक्शन करना एक अच्छी बात है। और साथ में एक टीम लीडर जियानंद जी भी हैं, ये भी आए हैं जो जल जीवन मिशन को आगे बढ़ाने के लिए सपोर्ट कर रहे हैं डिपार्टमेंटल एक्टिविटीज। अभी हमने MOUs के मॉडलिटीज़ के बारे में बातचीत की, यहाँ के ग्रुप के साथ इंटरेक्शन अभी कृष्णा साहब कर रहे थे, फिर हम इसको कंसोलिडेट करने की कोशिश करते हैं कि मोटे मोटे तौर पे क्या है ये प्रावधान। देखो, आप सभी पंचायतों के प्रतिनिधि हैं और पंचायतें डिमांड करती रही हैं कि ज़्यादा पावर्स मिले। डेवोल्यूशन ऑफ पावर्स को लेकर बहुत सारा मंथन देश में होता रहा है। 73वें संशोधन में बहुत कुछ सोचा गया था कि रोल्स जो है पंचायतों के काफ़ी ज़्यादा बढ़ेंगे। केरला में आप कुछ लोग गए होंगे, पंचायती राज व्यवस्था को जिन्होंने देखा है, वहाँ पे ग्राउंड लेवल के जितने फंक्शनरीज हैं पंचायत को रिपोर्ट करते हैं।
रोल्स बढ़ गए। कर्नाटका में पंचायत सेक्रेटरी वाली कोई पोजीशन नहीं, वहां कहते हैं पंचायत डेवलपमेंट ऑफिसर, पीडीओ नाम दिया हुआ। रोल्स बढ़े हैं। और यहाँ पे हिमाचल में भी एक एक्सरसाइज करीब 12-15 साल पहले हुई थी, शायद GTZ ने वो एक्सरसाइज की थी कि किस हद तक कौन से विभाग का रोल पंचायतों को दिया जाए। उसमें एक नोटिफिकेशन भी निकली थी, लेकिन वो प्रैक्टिकल रूप उसका दिखा नहीं। और आज जल जीवन मिशन के तहत एक मौका है पंचायती राज संस्थाओं के पास कि कम से कम एक काम तो डायरेक्टली आपके सुपरविजन में होने के लिए आ रहा है। इससे पहले 2012 में प्लानिंग कमीशन था, अभी तो नीति आयोग हो गया, उस टाइम प्लानिंग कमीशन था। प्लानिंग कमीशन ने एक योजना शुरू की थी, एक पहल की थी, डिसेंट्रलाइज्ड डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग। मतलब जो योजना का तरीका अभी हमारे यहाँ पे है वो क्या है, वर्टिकल है। हर विभाग अपने तरीके से पंचायत, ब्लॉक, डिवीजन और स्टेट तक की प्लानिंग करता है, और दूसरे विभाग को उसको पता नहीं होता कि क्या पानी वाला विभाग क्या प्लान कर रहा है, पीडब्ल्यूडी को पता नहीं है, फॉरेस्ट वाला क्या कर रहा है, एग्रीकल्चर वाला को पता नहीं है। तो सारे लोग आइसोलेशन में काम करते रहे। ये व्यवस्था थी, इसमें काफी बड़ा मंथन हुआ। उसके बाद बात आई कि जितने बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स हैं देश में, वहां पे कोशिश की जाए कि हम वर्टिकल प्लानिंग की अपेक्षा हॉरिजॉन्टल प्लानिंग करें। हॉरिजॉन्टल प्लानिंग का मतलब क्या था कि पंचायत लेवल पे सारे विभाग एक जगह योजना उनकी आएगी पंचायत लेवल पे, फिर ब्लॉक लेवल पे सारे विभागों की कंसोलिडेशन योजना ब्लॉक लेवल पे होनी है, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, फिर डिस्ट्रिक्ट का प्लान बनना था, वो डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी ने अप्रूव करना था। लकीली हमें इस प्रोसेस में काम करने का मौका मिला। हम मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज के साथ टेक्निकल सपोर्ट इंस्टीट्यूशन उस टाइम भी थे। आज भी जल जीवन मिशन में हम की रिसोर्स सेंटर के रूप में काम कर रहे हैं। उस टाइम हम टेक्निकल सपोर्ट इंस्टीट्यूट के रूप में मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज के साथ चंबा जिले के लिए हमें नियुक्त किया गया था, और उत्तराखंड में हम थे चमोली जिले के लिए। वहाँ की जो पंचवर्षीय योजनाएं हैं 12 से 15 वाली, वो हमारी बनी हुई है। और उस व्यवस्था में काफी परिवर्तन की जरूरत थी। जो सरकार की मंशा थी कि हम हॉरिजॉन्टल प्लानिंग की ओर जाएं, तो उसमें जितना भी पैसा जहां जहां है उसको पहले इकट्ठा देखना है। हमने एक रिसोर्स इन्वेलप बनाना है कि टोटल पैसा हमारे पास कहां से आ रहा है, वो चाहे 15 वित्त आयोग से कितना आ रहा है, मनरेगा से कितना आ रहा है, एमपी लेड से कितना आ रहा है, CSR से कितना आ रहा है, जो जो भी सोर्सेज हो सकते हैं पैसे के, उन सबको पहले कंसोलिडेट करके इकट्ठे हमने रखना है। उसके हिसाब से हमने प्लान आउट करना था कि टोटल पैसा हमारे पास इतना है और इस पैसे को हम ऐसे ऐसे कामों में लगाएंगे। वो प्रोसेस थी। खैर उसमें एक बहुत लंबी एक रिकमेंडेशंस हमने स्टेट गवर्नमेंट को दी थी कि इस प्रोग्राम को अगर लागू करना है तो ये बदलाव हमें व्यवस्था में पहले करने पड़ेंगे, लेकिन वो वैसा नहीं हो पाया। वो रिकमेंडेशंस पे आगे तवज्जो नहीं दे पाए और वो धीरे धीरे सारी एक्सरसाइज शून्य हो गई और आज वही हम वापस उसी जगह में। इसके लिए गवर्नमेंट की विल का होना बहुत ज़रूरी है, कुछ भी बड़ी पहल करनी है। और यहाँ पे जल शक्ति विभाग में एक गवर्नमेंट का मैंडेट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का भी मैंडेट है, और सरकार ने भी यहाँ पे माना है कि यस ठीक है दी जाए। विभाग ने एक्टिवली इसमें काम करने की कोशिश की है। तो एक मौका है पंचायती राज संस्थाओं के पास कि कम से कम एक विभाग का काम तो हम देखना शुरू करें। अभी एक प्रधान जी बोल रहे थे हमारे पानी की पाइप बहुत जगह से लीक हो रही है, उसके सॉकेट नहीं है, थक गए बोल बोल के कोई काम नहीं कर रहा है। यही सब समस्याएं दिल्ली वालों ने भी सोची थी, तभी ये मिशन की शुरुआत हुई। क्योंकि अभी तो हमें बोलना पड़ रहा है, जेई को फ़ोन करेंगे, SDO को फ़ोन करेंगे, तब जाके होता है, नहीं होता वो अलग मामला है। लेकिन अब क्या होगा, आपके पास मेंटेनेंस ऑपरेशन के लिए फंड्स होंगे, 15 वित्त आयोग से थोड़े डाल दो इस खाते में, फटाफट रेंच और यूनियन सॉकेट बेसिक चीज़ें जो चाहिए उसको लाओ। आपके पास काम करने वाला आदमी है, वोटर कार्ड, उसको बोलो अभी मेरे सामने अभी करवाओ, ठीक है, कहानी खत्म। तो शिकायत करने की जरूरत ही किसी को नहीं पड़ेगी। इस व्यवस्था में जाने के लिए पहला कदम है। इस कदम को आज अगर हमने लिया तो इसका मतलब कल के लिए हो सकता है एजुकेशन के रोल आपके पास आ जाएंगे, एनिमल हस्बेंड्री का रोल आपके पास आ जाएगा,
बिजली वालों का रोल आपके पास आ जाएगा। जब हमारे पास जो भी समस्याएं हमारी है बेसिक सुविधाओं को लेकर, जब उनका समाधान करने की ताकत हमारे पास आएगी पंचायत लेवल पे, वो है सेल्फ गवर्नेंस। बड़ा करने के लिए हम पंचायत को एक मिनी रिपब्लिक के रूप में देखें। एक छोटा देश जैसे फंक्शन करता है वैसे पंचायत काम करे। उस तक कैसे पहुंचेंगे? तभी पहुंचेंगे जब रोल्स हमारे पास आने और शुरू होंगे, बड़े शुरू होंगे। दैट इज ऑल अबाउट। किसी को कोई प्रश्न है और इसमें? नहीं सर, ऑल वेल, सब ठीक है, गुड। हम लंच के बाद एक एक्सरसाइज करेंगे, ग्रुप्स में करेंगे, कि ये स्कीम्स हैंड ओवर करने के बाद आप क्या चुनौतियां देखते हैं, क्या समस्याएं आ सकती है, उसके प्रोबेबल सॉल्यूशंस क्या हो सकते हैं, समाधान क्या हो सकते हैं। आपके पास ही समस्याएं हैं, आपके पास ही समाधान भी है, और हमने सिर्फ फैसिलिटेशन का काम करना है। और आपके जो इतने रिच एक्सपीरियंस हैं फील्ड के, उनसे हम सभी लोगों को लाभ भी मिलेगा। तो ये हम एक्सरसाइज लंच के बाद करेंगे। तो सर आपका सेशन कुछ अभी नहीं सर, मैं तो दे दिया जो अच्छा था सर के साथ है, अगर ग्रुप 2 नहीं आता तो हमारा लंबा तो हमारे बीच जियानंद जी हैं जो टीम लीडर हैं जल जीवन मिशन में टेक्निकल सपोर्ट टीम के। मैं चाहूँगा कि आप आए हैं तो आप प्लीज हमारे एक्सिन साहब और IIRD की टीम, मेहता जी हमारे पुराने साथी, और कुछ शायद पहचान के भी यहाँ पे आए हैं रिप्रेजेंटेटिव। तो आप सब लोगों ने, अभी मैं देख रहा था आपकी डिस्कशन भी सुन रहा था, तो आप सब लोगों ने 3 इडियट फिल्म देखी है? जी सर। उसमें वायरस जो है वो एक सवाल करता है बच्चों से, क्या करता है कि चांद पे जाने वाला पहला आदमी कौन था? कौन था? नील आर्मस्ट्रॉन्ग। और दूसरा? दूसरा भी वही था, बोला दूसरा क्या मतलब है? तो आप लोगों से जवाब आ गया कि पहले को याद रखते हैं, दूसरे को कोई याद नहीं रखता। yes. आप लोग पहले लोग होंगे जो इस काम को करेंगे। आपको याद रखा GTZ जाएगा। भी तो सर कर रहे हैं, वो भी इसी का पार्ट है ना? है जी, GTZ भी इसी का पार्ट है। GTZ वो खत्म सेम है सर, सेम प्रोसेस है। नहीं, वो पहले था, वो अभी चल रहा है सर, चल रहा है चेंज हो रहे हैं, मतलब ना जिस पंचायत में चल रहा है मैं तो फेस कर चुका हूँ ना सर, पार्ट सेम है। चलो सिरदर्दी इसमें पंचायत की है लास्ट में। चलो मान ली बात मान ली बात आपकी कि सिरदर्दी है, लेकिन वो लेने पे है, 3 इडियट वो आपके लेने पे है। एटीट्यूड कैसा है? नहीं, पॉजिटिव है कि भैया हर चीज वैसी ही ठीक बैठती है सर 3 इडियट यहाँ पे। तो पहला जब काम करते हैं, हमारे गुरुजी थे एक हेमचंद्र जी सिरमौर से, वो बोलते थे कि जब तपती धूप है, जब गर्मी है, खूब गर्मी है, जब बारिश गिरती है तो पहली बूंद जो होती है उसका पता नहीं चलता, उसकी तो भाप भी नहीं उड़ती, इतना मतलब वो नीचे वो जब जमीन पे गिरती है तो उसका पता नहीं लगता। तो जो पहला है उसको चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। आप सब लोग किसान हैं, बीज बोते हैं, बीज अगर अकड़ जाए कि भाई मैंने तो न गलना है, न सड़ना है, न टूटना है, तो वो उगेगा ही नहीं। वो पहले गलता है, फिर उससे अंकुर फूटता है, उसके बाद वो बड़ा पौधा बनता है और उससे कई सारे बीज निकलते हैं क्यों नहीं? तो इसलिए हो सकता है कि आपके रास्ते में चुनौतियां भी आए, चैलेंजेस आए, जैसे अगला सेशन आप लोग करेंगे, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि आप चैलेंज लेने को तैयार ना हो। अगर आप चैलेंज लेंगे, अगर आप चुनौतियां लेंगे तो आपको ज़रूर उसमें, हाँ ठीक है, अभी 90 पंचायतें हम बोल रहे हैं हिमाचल प्रदेश की पहली पंचायतें जो आप लोग हैं, हो सकता है 90 में से 30 फेल हो जाए। हम नहीं बोलते कि 100% इसका रिजल्ट निकलेगा, 40 फेल हो जाए, 50 फेल हो जाए, लेकिन 40 जो सक्सेसफुल होंगी या जो सफल होंगी वो भी तो मॉडल बनेगी, और जो फेलियर होगा उनसे भी हम कुछ सीखेंगे। जैसे आप बोल रहे GTZ का हमारे को एक्सपीरियंस है,
तो उससे भी कुछ हमको सीखने को मिलेगा कि भाई हम फेल क्यों हुए, क्यों ऐसा हो गया कि भाई हमारे को जो 40 पंचायतें सफल हुई है वो क्यों सफल हुई है, जो हम इसमें असफल हुए हैं वो क्यों हुए। वो सारी चीजें हमारे सामने आएगी, एनालाइज करेंगे। उसके बाद तो 32-33 तो पंचायतें और है जिनमें सब में होना है, और आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है पहल करने की, और पहले आप लोग हैं। और इसमें पहले भी कहा गया कि 2 चीजें इसमें है, बाध्यता नहीं है। अगर पंचायत नहीं चाहे तो आपकी जगह मान लो किसी ब्लॉक में 43 पंचायतें हैं तो 42 और भी तो है आपके अलावा, उनको किया जा सकता है चिन्हित, उनको लिया जा सकता है। दूसरी बात रही, आप बोल रहे हैं सिरदर्दी, सिरदर्दी नहीं है, आप लोगों का सशक्तिकरण है। पंचायती राज के अंदर जो 73वां संशोधन है वो ये बोलता है कि 29 तरह के डिपार्टमेंट या काम पंचायत को लेने हैं, और उसमें पेयजल स्वच्छता भी एक काम है जो आपको करना ही करना है। 15 फाइनेंस कमीशन में उसके लिए 50-60% आपको उसी में खर्च करना है। मेंटेनेंस की जो बात आ रही थी उसमें आप एक शेल्फ के अंदर ये कंपोनेंट मेंटेनेंस का रख लो, 50,000 रखो, 1 लाख रखो। 1 लाख जो आता नहीं है मेंटेनेंस के लिए, अगर पंचायत के विद इन पंचायत आप लोगों को काम करना है, कहीं एक सॉकेट लग गया 20 रुपए का, कहीं 50 रुपए का यूनियन लग गया, कहीं पाइप का टुकड़ा लग गया, उसके लिए पूरा प्रोसीजर आप चलेंगे कि भाई पहले फीटर को बोलेंगे, फीटर ऊपर सुपरवाइजर को बोलेगा, स्टोर कीपर को बोलेगा, फिर जेई तक जाएगा, वो सैंक्शन करते करते पानी तो जो है वो कितना बह जाएगा। आपके पास अथॉरिटी है, VWSC है आपके पास, आप सैंक्शन करो, आपके पास जो फंड है मेंटेनेंस का उसमें से खर्च करो, 50 रुपए का यूनियन लो और 1 घंटे में काम खत्म, छुट्टी। उसमें क्या सिरदर्द है? उसमें कोई सिरदर्द नहीं है, आपके पास सिर्फ वितरण का है। आप देखिए, मान लो एक्सीएन साहब है, एक्सीएन साहब को डिपार्टमेंट तनख्वाह देता है। मैं हर जगह ये उदाहरण देता हूँ जिन पंचायतों में मैं गया हूँ, एक्सीएन साहब को तनख्वाह देता है डिपार्टमेंट महीने में, है ना। महीने में जब ये काम खत्म करते हैं अपना तो महीने बाद उनको तनख्वाह मिलती है। लेकिन जब तनख्वाह डिपार्टमेंट दे देता है उसके बाद एक्सीएन साहब को ये तो नहीं बोलता कोई कि भाई आपने अपनी पत्नी के ऊपर इतना खर्च करना है, अपने बच्चों को इतना पैसा देना है, आपने इस ब्रांड के जूते लेने हैं, आपने कोट नहीं लेना, आपने जो है सस्ती सी सदरी लेनी है। ऐसा तो नहीं बोलता डिपार्टमेंट। सेक्रेटरी साहब आपको मिलती है तनख्वाह, आप जब तनख्वाह ले लेते हैं उसके बाद तो नहीं बोलता डिपार्टमेंट कि आप किसके ऊपर परिवार में कितना खर्च करेंगे। बोलता है कि नहीं ना बोलता? हाँ ना, नहीं ना बोलता। हाँ, तो हम क्या बोल रहे हैं कि जो मुख्य जगह है, मतलब मेन टैंक है, मेन टैंक तक हम आपको पानी दे रहे हैं, पूरी मेंटेनेंस भी कर रहे हैं। जो खर्चा है करोड़ों रुपया, 5-6 करोड़ रुपया केवल जो विभाग है वो बिजली का बिल देता है हर साल बिजली विभाग को, क्योंकि वो लिफ्ट करना पड़ता है पानी, वो खर्चा बड़ा है, वो पंचायत नहीं कर सकती। हमारे को पता है कि अगर हम पूरी स्कीम आपको दे देंगे कि भाई नीचे से लेकर के, लेफ्ट से लेकर के ऊपर तक आपने सब कुछ मेंटेन करना है, आप नहीं कर पाएंगे, हमारे को पता है। इसलिए वो जो बड़ा खर्चा है, बड़ी लाइन है, मेन टैंक तक जब आपको सप्लाई दे दी, उसके बाद का वितरण जो हम तनख्वाह कह रहे हैं कि अपने परिवार के ऊपर आपने खर्च कर दिए हैं, हम ये बोल रहे विद इन पंचायत तो आप दे, और उसमें हम ये मान के चल रहे हैं कि पंचायत चुनी हुई पंचायत है, सबकी पंचायत है, बराबर सबको देखेगी। जो क्लॉज में आपने यहाँ भी देखा, इसमें MOU में पढ़ा कि पंचायत जो है सबको बराबर देगी। ऐसा नहीं है कि ये मेरा चाहने वाला ज्यादा है तो इसको मैं ज्यादा पानी दे दूंगा और ये दूसरे वालों ने मेरे को वोट नहीं दिए इसको मैं कम दूंगा पानी। क्योंकि जब चुन ली है पंचायत तो आपकी जिम्मेदारी है वो कि बराबर सब लोगों को पानी दे। दलित बस्ती है उसको बराबर पानी मिले, गरीब आदमी है उसको बराबर पानी मिले। अभी तक क्या था, चिन्हित कनेक्शन थे, जो खर्चा कर सकता था उस तक, उसके घर तक नल का था। लेकिन जब सरकार ने ये बोला कि गरीब है चाहे अमीर है, हर एक घर तक नल का जाएगा, उसके बाद है पानी का वितरण। वितरण आप देखो, और उसके लिए भी जो खर्चा है विभाग जो आपको लोग दे रहा है, उनका कंट्रोल नियंत्रण आपके पास दे रहा है कि अगर वो नहीं करते हैं काम ठीक ढंग से तो आप कह सकते हैं कि ये ठीक ढंग से काम नहीं कर रहे भाई, इनकी तनख्वाह ना रिलीज करो आप डिपार्टमेंट की तरफ से।
तो वो कंट्रोल आपके पास है। देखो ये चीजें होती है, मतलब जिसको हम बोलते हैं क, एक है कार्य, काम, काम आपको मिल रहा है वितरण का। दूसरा है उसके अंदर कार्यकर्ता, कार्यकर्ता है उसको वितरित करने वाला आदमी, कार्यकर्ता भी आपको मिल रहा है। तीसरा है कोष, कोष के अंदर भी आपके ऊपर बर्डन नहीं है। 3 है ना को। चौथा कार्यालय हो तो पंचायत के पास है ना, फंड, फंक्शन एंड फंक्शनरीज बोलते हैं ना हम, 3F। तो तीनों चीजें आपको अभी डिपार्टमेंट की तरफ से मुहैया हो रही है। तो क्या दिक्कत है? यही है ना कि वितरण देखना। आपके पास क्या है, पंचायत है, 5 वार्ड है, वहां पे 7 लोग हैं, प्रधान उप प्रधान समेत। VWSC है, कई जगह 15 की है, 15 7 22 लोग हो गए। 22 लोगों में अगर आप डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, भाई फलां गांव में आप रहते हैं VWSC के मेंबर, आप इस काम को देखो, आपके पास उस क्षेत्र की शिकायतें आपके पास आए, बजाय इसके कि प्रधान को कोई फोन करे, उप प्रधान को फोन करे, जेई को फोन करे, या मान लो किसी डिपार्टमेंट में और फीटर को करे। क्योंकि फीटर और नीचे वाटर गार्ड तो बेचारा आधा टाइम तो उसका 60% टाइम उसका फोन सुनने में लग जाता है, शिकायतें सुनने में। उसने कब काम करना? गरीब आदमी फिर तंग होके क्या करता है, मैं क्या बोलता हूँ, वो फोन बंद करता है कि जाओ ऐसी तैसी में। क्या करेगा वो? तो जब 22 लोग उस समस्या का हल करेंगे अलग अलग से कि भाई इस क्षेत्र में वार्ड पंच ये है, तो इस क्षेत्र की समस्या वो समझे, उसके पास शिकायत आए। फिर आपका ये है कि 15 दिन में VWSC की मीटिंग आपको करनी है, उसमें आप उस ग्रीवेंसेस को आप सॉर्ट आउट कर सकते हैं, वो सारी चीजें आप उसको देख सकते हैं। तो आपके पास जिम्मेदारियां, अच्छा VWSC मेंबर को भी ये लगेगा कि चलो मेरी जिम्मेदारी, अभी तो आपने लिख के दे दिया कि अच्छा इससे पूछा आपके कौन है जी एक्टिव, महिलाएं करनी है हमने 12 में से 6, अच्छा आप नाम बताओ, आप नाम बताओ, आप नाम बताओ। उस तरह से VWSC हमने बढ़ा तो दी, या ठीक आ रही थी बात कि उनको पता नहीं है कईयों को कि भाई हम मेंबर भी है। उनको एक्टिव करो, उनको रोल दो, उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दो, उनको जिम्मेवारी देंगे। हम तो यहाँ तक बोल रहे कि उनकी भी एक स्टैंप बनाओ VWSC के मेंबर की, कि जब वो मान लो कोई वाटर गार्ड है, दूसरा आदमी है, जब कंप्लेंट सुनने के लिए वहां जाता है तो उसका लिख के लाए, स्टैंप करके लाए कि भाई हाँ ये व्यक्ति यहाँ पे आया था, इसने अटेंड करी ये शिकायत और इसका सॉल्व इसने कर दिया, इसको रिजॉल्व कर दिया। अगर रिजॉल्व नहीं हुई है शिकायत, अगर वो शिकायत वो आपकी नहीं खत्म हुई है, तो उसका भी कारण बताए कि क्यों नहीं हुई। तो उसकी हाजिरी का एक प्रोसेस ऑलरेडी जो है वो हो जाएगा कि भाई हाँ इसकी हाजिरी यहाँ पे फील्ड में लगी है, तो हाजिरी का प्रोसेस भी हो गया। किसी ना किसी गांव में अगर आपने ठीक से ढंग से अगर VWSC का चयन किया होगा, तो कम से कम हर गांव से कोई ना कोई VWSC का मेंबर आपके उसमें कमेटी में होगा ही होगा। तो हर एक आदमी को आप बाकायदा, जैसे प्रधान उप प्रधान मेंबर के आपने नंबर लिखे होते हैं वो पंचायत के अंदर, VWSC वालों के भी नंबर लिखो और उसमें स्पेसिफाई करो कि इस क्षेत्र के लिए ये आदमी जो है समस्याओं को सुनेगा, इसके पास आप समस्याएं बताओ, ये इसके हल के लिए मदद करेगा। तो इसमें कहाँ मतलब कहाँ दिक्कत है? अब ये है कि भाई चलो मैं भाषण दे रहा हूँ इसलिए आप चुप है, आप चुप इसलिए कि आपको ट्रेनिंग में बुलाया गया है, ट्रेनिंग में बुलाया गया तो आपकी मजबूरी है मेरे को सुनना। वो बिल्कुल नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है, कोई मजबूरी नहीं है कि भाई आप मेरे भाषण को सुने या उसको, ये कोई बाबे का वो नहीं है क्या नाम पंडाल की भाई वो प्रवचन सुने, उसके बाद थोड़ी देर के बाद जब लंच में जाएंगे यार वो आया था वो बेली बात कर रहा था, हमारे को तो नहीं जची उसकी बात। वहाँ नहीं, यहीं पे आप लोग जितनी डिस्कशन करेंगे, जितने सवाल करेंगे, हम सवालों से घबराते नहीं है। आप लोग कर रहे थे डिपार्टमेंट की बुराई भी कर रहे थे, पानी नहीं आ रहा, मालूम है हमारे को पानी नहीं आ रहा, लेकिन ऐसा नहीं है कि पानी नहीं आएगा, क्योंकि ये कमिटमेंट है, 100% आएगा। जब 5 करोड़ की आपकी स्कीम बनी है तो स्कीम चालू होगी, वो ठीक है। उसमें क्या दिक्कत है वो आपने भी सॉर्ट आउट करने की कोशिश, कभी डिपार्टमेंट से पूछने की कोशिश नहीं करी, भाई आपने इतना बड़ा खर्चा किया है ये क्यों नहीं चालू होती। और जहाँ पानी के स्कीमें नहीं अभी
वहां पे भी ये है कि भी विभाग कोशिश कर रहा है, आपके पास अगर सोर्स है, स्रोत है पानी का, तो उसकी फिजिबिलिटी को देखते हुए डिपार्टमेंट उसको वहां से भी आपके लिए स्कीम जो है बड़ी करेगा। क्योंकि जब नलके लगा दिए हैं तो ऐसा नहीं है कि भाई आपको नहीं मिलेगा, अच्छा मिलेगा जरूर, वो 100% है कि उसको मिलना ही मिलना है पानी आपको जब नलके लगे हैं। लेकिन ये है कि देर सवेर हो सकती है। हमारे को पता है शिमला जिला में बहुत क्राइसिस है, लोग टैंकर खरीद करके भी अभी गांव में गुजारा कर रहे हैं, इतनी भी स्थिति है। हम उससे अनभिज्ञ नहीं है, हम उससे मतलब ऐसे नहीं है कबूतर की तरह हमने आंखें बंद कर ली कि भाई बिल्ली आ गई तो हमने कबूतर की तरह आंखें बंद कर ली, वो नहीं है हमारा। हमारे को पता है समस्या भी है, लेकिन उस समस्या का हल भी है और हल की दिशा में भी हम लोग हैं। ऐसा नहीं है विभाग की भाई उस दिशा में नहीं, सब कुछ है। लेकिन यही है कि भी थोड़ी जिम्मेदारी हम अगर लेंगे, पंचायत को भी ये लगेगा थोड़ा सा तो सशक्तिकरण होगा। बाकी तो ये है ना, अगर पंचायत सशक्त है तो कोई वो नहीं है, ठेकेदार भी जो है सेटिंग उनकी हो जाती है और विभाग भी जवाबदेह हो जाता है। जब आपको ये है कि भाई आपको 55 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन पानी मिलना है, या कई जगह जैसे ऊना में हम देख रहे थे 70 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन पानी वहाँ पे नॉर्म है, उतना पानी उस टैंक में आपको स्पेसिफाई किया जाएगा कि भाई इतना इस टैंक से आपको इतना पानी मिलेगा, इस टैंक से आपको इतना पानी मिलेगा, इस टैंक से आपको इतना पानी मिलेगा। वो लिख के आपके पास जब है तो आप जवाबदेह डिपार्टमेंट हो जाएगा कि आपने इतना पानी दिया कि नहीं दिया हमारे। अगर आपको लगता है कि हम कैसे नापेंगे तो उससे पीछे मीटर लगा दो, एक मेन टैंक से पीछे एक मीटर लगवा दो और उसमें किसी आदमी को VWSC मेंबर को दे दो जिम्मेवारी की रोज का मॉनिटर करे भाई इतना पानी हमारे हिस्से का था, आया कि नहीं आया। तब आप अभी तो 100% डिपार्टमेंट के पास है ना, इसलिए आप मॉनिटर नहीं कर पाते डिपार्टमेंट को भी। जब वो हो जाएगा कि टैंक में इतना पानी डिपार्टमेंट ने देना, तब आप उसको मॉनिटर कर पाएंगे कि आपने इतना पानी आज नहीं दिया। दूसरा ये है कि आपको ये तय करना है, मान लो कभी क्राइसिस हो जाते हैं, जैसे अभी हम बात कर रहे थे आते आते कि इस बार बारिश ही नहीं हुई, बर्फ नहीं पड़ी, क्राइसिस हो सकते हैं पानी के। तो अगर आप तय करते हैं, वो आप मॉडलिटीज जो बनानी है, आपने जो तरीके बनाने हैं, जो नियम बनाने हैं, वो ये हो सकता है कि हम रोज नहीं पानी दे सकते भाई, तीसरे दिन पानी दे सकते हैं। तो आप तय कर लो कि तीसरे दिन पानी देंगे, लेकिन ऐसा ना हो कि किसी को तीसरे दिन पानी आ रहा है, किसी को छठे दिन भी नहीं पानी आ रहा है। वो MOU यही बोलता है ना कि ऐसा ना हो। अगर किसी को तीसरे दिन पानी आना तो तीसरे दिन ही सबको पानी आए, उसको चौथे पांचवें दिन का ना जाए। और अगर चौथे दिन भी आना है, मान लो 2 दिन छोड़ के आना है, तो सबको 2 दिन छोड़ के आए, सबको। वो बराबरी आपने देखनी है, वो बराबरी आपने करनी, इतना मॉनिटर करना है, इतना तो कर ही सकता है। परिवार के मुखिया है आप लोग, परिवार मतलब पंचायत के मुखिया जब आप है तो परिवार की तरह है पंचायत आपके लिए, सबको बराबर देखना है आपने। तो ये है, ऐसा नहीं है कि भाई इसमें बड़ी भारी कोई बहुत टेक्निकलिटी है। जहाँ तक आप बोल रहे हैं कि भाई ऐसा नहीं है कि भाई हम कौन सी VWSC कौन सी बड़ी ऐसी हो गई कि भाई उसके रिकमेंडेशन के ऊपर या उसकी योजना के ऊपर विभाग काम करेगा विभाग काम ना। VWSC को सशक्त करना है, ये मैंडेट है। उसका जो रेजोल्यूशन होगा उसके पैड पे जो आपकी डिमांड जाएगी, उसके पैड पे जो प्लानिंग जाएगी, उस पे डिपार्टमेंट गौर करेगा। और आपको सफल बनाना भी डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी अभी क्यों है? वो इसलिए है कि आप अगर सफल होंगे तब आगे वाली पंचायतों को प्रेरणा मिलेगी। इसलिए आपको थोड़ी और मदद, जितनी मदद बाकियों को हो रही है उससे थोड़ी एक्स्ट्रा मदद आपको होगी, इसलिए क्योंकि आपको सफल करना है। अगर नहीं करेंगे सफल तो फिर आप जो है अगली पंचायतें हम कैसे कर पाएंगे। तो इसलिए ये मत समझो कि भाई हाँ जी अब MOU एक कागज हमने साइन कर लिया, हस्ताक्षर कर लिए, अब जो है हमने तो बिल्कुल अब ऐसा हो गया, ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ ये जरूर है कि छोटी मोटी मेंटेनेंस आपको करनी पड़ेगी, उसके लिए आपके पास सफिशिएंट फंड होते हैं। 15th फाइनेंस कमीशन में भी है, उसमें भी आप डाल सकते हैं कंपोनेंट। उसके अलावा 3-4 मेहता जी ने यहाँ पे जब हम इस सेशन में कर रहे हैं, बाकी सेशन में MP लेड फंड है और आपका MLA लेड फंड है,
वो सब चीजें उसमें आप इंक्लूड कर सकते हैं। इसके लिए हमारे को ये चाहिए, वो सारी चीजें तो है ही है। सर एक बात बोलूँ? हाँ जी, नाराज तो नहीं हो गया? ना हम है आप लोगों ने चलो बताया, आपका भाषण सुना कि आपका जो डिपार्टमेंट है कि वही वहाँ दिक्कत आती है, एक सॉफ्टवेयर लगाना है, पाइपें लगाने हैं, कि वहाँ प्रोसेस जो है वो लॉन्ग है, ठीक है। कोई क्या बोलते हैं, आपका पहले होता वो वाटर गार्ड देगा रिपोर्ट, फिर आपका होता सुपरवाइजर बनाया होता, फिर वो जे के थ्रू आता, कहाँ कहाँ होके आता है, ठीक है, ओके। पंचायत जो है, ठीक है, आपने बोला कि भाई आपने जो अपने 15 फाइनेंस में, हाँ उसमें रूल में प्रोविज़न है कि आप जो हमारा जो पेयजल योजना है उसके लिए जो है इतना जो हम क्या बोलते हैं अपने बजट में जो है प्रावधान कर देंगे, ओके, हमने कर दिया। पर पंचायत में जो प्रोसेस है ना, वहाँ ये लोग इतने खजिल होंगे, वहाँ प्रोसेस जो आपने बताया कि हमारा जो इतने चैनल से जाएगा, वहाँ इससे और ज़्यादा चैनल है। नंबर 1 का हमने डाल दिया इस WSS रिपेयर के लिए अनुमानित बजट रख दिया, हमने डाल के मैक्सिमम 1 लाख रुपया रखा, पूरी योजनाएं जितनी भी पंचायत लेवल पे चली, ठीक है, हमने डाल दिया, ओके। हमारी टूट गई, बरसात में आ गया, फ्लड आ गया, पाइपें टूट गई, ये हो गया, वो हो गया, ठीक है, उसमें लग रहा लगभग 20-25 हज़ार लग रहा अनुमानित, ठीक है, ओके। अब वहाँ थोड़ी सेक्रेटरी है, प्रधान है, वो एकदम दे देंगे पाइपें लगाओ, वहाँ भी प्रोसेस है। अगर 25,000 का सामान है, 1,000 से ऊपर लेना है, वहाँ भी प्रॉपर जो चैनल में कोटेशनें प्रोवाइड करनी पड़ेगी, 15 दिन का टाइम देंगे हम, फिर उसके बाद कोटेशन आएगी, फिर खोलेंगे, ठीक है। प्रोसेस होते होते लगने 3 महीने, उधर से लोग मारेंगे जूते कि पानी नहीं आ रहा है, ठीक है ना। पहले इसको भी फॉलो करो आप। मैं ये चाहता हूँ, आपका डिपार्टमेंट है, इतना बड़ा डिपार्टमेंट है, अगर आपका एक कागज़ इतने चैनल से घूम के जाओ, इसको ईजी बनाओ ना। पंचायत के ऊपर क्यों इतनी बड़ी सिरदर्दी? पंचायत तो मैं बोलता, अगर मैं प्रधान हूँ ना, मैं तो ऑर्डर करूँगा डिपार्टमेंट को इमीडिएट करो, आप अपना जो काम का जो ये है उसको इजी करो ना, आप इजी करो, आप अपने काम को इजी करो ना। MOU में भी कर रहे हैं, इसको इजी करो। इसमें जो है देखो 15% तक तो खर्चा करने का WSC को इसमें है ही प्रावधान ना, बिल्कुल। तो इसमें आपके पास ग्राम सभा है, ग्राम पंचायत है, वो आप रिजॉल्व कर सकते हैं उसके अंदर कि भाई इतना एक खर्चा जो है इमीडिएट इफेक्ट के साथ जो है WSC की रिकमेंडेशन पर किया जा सकता है ना। वो तो हो ही सकता है ना, वो ग्राम सभा तो ऑथोराइज्ड है ना कि वो फैसला ले सकती है। ग्राम सभा ऑथोराइज्ड है, ग्राम सभा के बगैर जो है पत्ता नहीं लेगा, ठीक है। प्रधानमंत्री नहीं काटेगा, जो ग्राम सभा ने डिसाइड कर लिया, वो भी ऐसा नहीं कि ग्राम सभा पर भारी सुप्रीम है, वो भी उसका भी क्षेत्राधिकार होता है, वो भी एक लाइन से बाहर नहीं जा सकते। मैंने ग्राम सभा में देखा, बंदे होते आए कि वो बैठ गए, फिर हमने बोल दिया कि दैट्स फाइनल, तो ऐसा नहीं, उसका भी एक लाइन होती है। आप ग्राम सभा बैठे, जो भी इतने बैठे, कि ऐसा नहीं ग्राम सभा ने बोल दिया कि आप छलांगी मार दो नीचे, वो भी एक क्षेत्राधिकार, ठीक है। उसमें बजट में जो प्रोविजन होगा ये होगा, पर उसको भी जो कागज जैसे आप बता रहे हो, हमारा भी वही प्रोसेस रहता है, उसको इतने ही प्रॉपर चैनल से गुजरना ही पड़ेगा, और उसमें इन लोगों को इतनी परेशानी होगी, लोग करेंगे इनको बहुत तंग, क्योंकि एक जम दम में कर नहीं पाएंगे ये लोग, बहुत उसमें तंग होंगे। आज तो क्यों नहीं कर पाएंगे, मेरे को बताओ, अभी मैंने बेंच खरीदने हैं, ठीक है, मैंने बेंच खरीदने हैं, मेरे टारगेट अगले हफ्ते मैंने बेंच लेने हैं, ठीक है। मैं कोटेशन देखूंगा, कोटेशन कॉल करूंगा, मेरे जो वेंडर है कोटेशन कॉल करूंगा ना, अगर या तो फाइनल नहीं है वो, ठीक है, होता है अमूमन ऐसा हमारी पंचायतों में, सभी में ऐसा होता है। वेंडर सिर्फ वही होता है जो परमानेंट, जैसे रेत बजरी का पूरे साल का हमें हो गया, अभी जैसे पाइपों का ही अगर बात आएगी तो हमें पता चल जाएगा कोटेशन में नेक्स्ट मार्च में हम भर देंगे, ठीक है, पहले भर देंगे हम, उसमें कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। 15 दिन कहाँ पे लगे मेरे को बात बताओ। साल के लिए जो पूरा जो कॉल होगा, सारा सब कुछ होगा, वो तो साल की बात अलग है, बात से लग जाएगा, लेकिन आज ही की डेट में, अगर फॉर एग्जांपल आज ही की डेट में MOU साइन करते हैं और परसों हमारी पाइप टूट जाती है ना, तो मैं टेंडर कॉल करूंगा ओपनली, ठीक है, जो डिपार्टमेंट है 3 कोटेशन लूंगा, जो सस्ती पड़ेगी, चौथे दिन जाके नहीं पाइप लगी तो मैं प्रधान पद छोड़ दूंगा। हाँ, मत छोड़ो, टेंडर कॉल का प्रोसेस हो जाएगा, हो जाता है, वो बता रहे हैं कि 15 दिन या 20 दिन, नहीं, आप पाइपें लगाएंगे सेक्रेटरी साहब, अभी ये सारे जो मुद्दे हैं ना,
इस सेशन के बाद बात डिस्कस करेंगे। चलो सर जनरली issues बात solution। की हम जी, असेट अभी- को बनाना वो इजी है अभी- पहले आप करना सर वो थोड़ा उसमें सचिव जी। तीन गेस्टेड पेपर में तो देना ही पड़ेगा ना ये है बात अभी तीन आप- तीन चार दिन में कैसे हो आप कैसे बना सकते हैं 15 दिन में असेट को बनाना वो इजी है असेट ऐसा नहीं है करना वो टफ है उसको गेस्टेड पेपर में डाल अरे फिर नहीं लगना है बाद में दो और सर पता क्या है ये सेक्रेटरी तो बेचारे 3 साल के लिए हो गए आप तो अपने गांव के डर में सोचे नहीं हुए। एक मिनट एक्सक्यूज मी पर मैं एक बंदा से तब चल पाएगा। इन विषयों पे हम बाद में बात करेंगे सेकंड हाफ में। इन्हीं विषयों पर चर्चा सेकंड हाफ में होनी है। अभी लंच वाले बुला रहे हैं, लंच ठंडा हो रहा है और आप सारी एनर्जी यहाँ एग्जॉस्ट करेंगे। बाद के लिए क्या रखेंगे? नहीं वो तो खाना खा के सब बात पता क्या है बात है काम करने की। मैंने बोल दिया फाइनल हुआ मैंने तो क्वेश्चन मैं तो इनके साथ मेडिटेशन इन लोगों ने बोला कि हमारा कागज ऐसा है मैं तो उसको क्वेश्चन किया काम करने की है बात काम करने की तो करना चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं।